मुझे बस ये खुशी है कि अब सब ठीक हो गया है और देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल। सबका एक साथ अच्छा लगता है मुझे जब हमारे मीटिंग्स होती हैं, सारी म्यूज़िक कंपनीज आते हैं, चाहे मेरे घर पे हो या कहीं और हों। हम लोग सब प्यार से मिलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मस्ती करते बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन अहेड, द वे अहेड। मुझे खुशी होती है और ये भी एक अच्छी बात है कि अब उनके दिमाग से भी निकल गया मेरे लिए जो था, तो आई एम बिजी अगेन। कई सिंगर्स मतलब कहीं तो ऐसे थे जो बोर्ड में रहते भी मतलब भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है। कई बार हम भी टूट जाते थे कि ये होगा नहीं होगा, 2 कदम आगे चल रहे हैं, 4 कदम पीछे जा रहे हैं, हो क्या रहा है हो क्या रहा है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ऑफ कोर्स वी फील वेरी वेरी इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छा लगता है। अब इनको डबल हैप्पीनेस है क्योंकि माही आ रहे हैं ना, माही मार्केट में आ गया है, माही मार्केट में आ चुका है, तो अब इनको डबल हैप्पीनेस है कि नहीं, कम वो से कम सारे सिंगर्स जो हमारे पे शक कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं लोग, अब तो कह सकते हैं देखो हुआ है, सबके घर पे चेक्स आ रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली यू फील कि कुछ आप कोशिश करते हो और फिर उसका जब एक अच्छा नतीजा होता है तो उसकी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। First deciding that what should our tariffs be, कि एक होटल को अगर वो गाना बजाना है तो उसको कितना हमको देना चाहिए, सबको मिला के एक एक अलग अलग नहीं, सबको मिला के एक फ़ी कितनी देनी चाहिए। वी आर डिसाइडिंग दैट, इट्स नाउ लिटरली कमिंग टू एन एंड। Once that money comes in, how is it going to be distributed amongst us? That's also nearly 95% over. There is not much confusion over that, luckily again, because so I think a very positive atmosphere has grown over the past couple of years as far as the copyright system in our country is concerned. पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए, बिकॉज उनसे भी सब लोगों की पर्सनली कि अगर वो हमारे इतने फ़ैन हैं और हमको इतना चाहते हैं तो बहुत पीनट्स उनके लिए कुछ नहीं है वो पे करना, मगर उससे आर्टिस्ट कम्युनिटी को, ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगी मैं बोलता हूँ आप 10 रुपये ले लो, उस 10 रुपये से कम 10,000 लोगों की ज़िंदगी सेव हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी राइटफुल डिमांड है। You must have watched a lot of interviews around music, from changing trends to musicians winning laurels, from the role of AI in music to genres like EDM or hip hop taking over, etc. On World Music Day last year, we had a very pertinent conversation around film and independent music going hand in hand. So this time around, we thought of taking things a step further to discuss not just the music we love, but the story behind it. The story of stakeholders such as singers, composers, and songwriters. And for that, we wanted to understand how bodies like the IPRS and ISAMRA safeguard musician rights. Hello everyone, I'm Soumya Vajpayee and you're watching HD City. And on World Music Day today, it gives me immense pleasure to welcome a very decorated panel of musicians who are not just stars in their respective fields, but are also among the flag bearers of the democracy of music. I say democracy because these bodies, the IPRS and ISAMRA, are of the musicians, for the musicians, and by the musicians. I know this intro has been a little long, so without further ado, I would like to welcome our guests. Padma Shri Sonu Nigam, who is among the board of advisors at ISAMRA. Multi-award winning singer Shan, who is among the board of directors at ISAMRA. Veteran lyricist Sameer Anjan, who is among the board of directors at the IPRS. And Mr. Sanjay Tandon, who spearheaded the IPRS in the 90s and is currently the director, founder, and CEO at ISAMRA. So firstly, I would like to thank each of you from the bottom of my heart, because I know that you had to really move mountains and travel countries to make this possible. There was one point when we thought this interview will not happen, but I'm glad it happened because this is a topic that has to be discussed, and this has not been. So that is, I must admit that this is one of the most difficult interviews I have prepared for, because there was no reference point for me to start researching or put questions together, etc. Thanks to you, you spent a lot of time in educating me about this. मैंने कहा था संजय जी से पूछो, संजय जी हमारे विकिपीडिया संजय जी हैं। हमारे फाउंडर मेंबर से पूछो, सब नॉलेज है, इसामरा का भी, IPRS का भी, सब नॉलेज है। ही सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट इन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा गाइड करके हमको इस यहाँ तक लेकर आए हैं। अगर ये ना होते तो ये सब कुछ नहीं होता। It is because of Sanjay Tandon ji. Absolutely, 100%. And I think वो
कुछ minutes की conversation gave me that insight because I felt that I've been lectured like वो जिए literally. हैं स्वामी, Exactly. वो जिए हैं, उन्होंने मतलब इन बिटवीन 2-3 साल पहले ही वॉज वेरी अनवेल और बहुत काफ़ी मुश्किल समय से गुजरे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये तब से अभी तक निरंतर दिन रात ये इसी उनका ध्येय है ज़िंदगी का, यही लक्ष्य है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रोशनी डालने इस पूरे सब्जेक्ट में रोशनी डाल सकते हैं वो संजय टंडन जी डाल सकते हैं। Absolutely, and I'm so glad, Sanjay ji, that you made it because we have 3 artists and we have somebody who is spearheading all of He is this. also an artist by the way. Yeah. जी, Yes. बहुत अच्छा गाते हैं। Yes, नीतीश yes, जी के yes. गाने बहुत अच्छे गाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम सब दुआएं मांग रहे थे ना संजय जी की गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए मांग रहे थे, क्योंकि वो नहीं, उनके बगैर ये हमारी जो ये जहाज है कब की, यू नो। बट इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब इसमें हमारे इसके पहले आप सब शुरू कर रहे हैं, मैंने बोला आप ही को आई जस्ट लाइट अप द एटमॉस्फेयर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लंबी जर्नी रही है। मतलब जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ उसके पहले से सब लगे थे, पर मेरी तो शुरुआत से मैं इस चीज़ में लगा हूँ एंड ऊपर नीचे बहुत सारा हुआ, बट इवेंचुअली एक होता ना कि बड़ी संतुष्टि है कि जिस रास्ते हम जूझ रहे थे उसकी मंजिल तक हम पहुँच गए। Wow. On that note, me as a music lover and all our viewers, we would want to understand this entire concept of IPRS and ISAMRA because, as I said, there is barely anything that has been spoken about, and we have always spoken about music, changing trends, etc., etc., but not the other side, not the story of the people who are stakeholders who make music. So, In fact, let me first congratulate you because you have taken up a subject again, as you rightly said, it's not been taken. You must not have had any references to this subject because unfortunately in India, nobody talks about copyright. Not only amongst the artists, but also amongst the public and then amongst the media and everyone. So copyright is the least talked about subject. So let me first congratulate you and thank you that you have come out, you have thought about having such a talk over copyright. That is one. Actually, copyright is a very important aspect to keep the culture of the country together. Because if copyright is not there, artists are not there. We need to realize that. And that's one of the reason I always keep on saying is the reason why somehow or the other the music aspect, the music industry aspect is not increasing. The music industry, if you compare the music industry of India with the music industry of the US or the UK or elsewhere in Europe, it's because they have the copyright structures in place. But I'm fortunate that I am as part that this particular atmosphere is now started being created in India. And so we are now at a very positive stage of life where artists can now see things happening as far as copyright is concerned. Copyright as such in India is a very old matter. You know, it started off in 1957 when the first Copyright Act was made. And you know why the Copyright Act came into being? There's a small story to it. What happened once in the 1847 or something, one of the artists was having his meal in a restaurant sitting in France. And he had his meal and he got up and the waiter came and said, "Sir, the bill." He said, "What bill?" So he said, "The bill for the food." He said, "Then this is my bill for the music you're playing. That music is mine. You have not paid me, so the food is yours. I'm not going to pay you. Let's have a barter exchange." And that's where the entire copyright concept started in the world, that everything has got a value. The music has got the value, that means the notations have the value. Then the words have the value, like Sameerji writes the word, Javed Sahab write the word, they have a value. Then there is also value in the expression of these words and that tune, which is the singer. And there is a value to even people who then play in the background to make the entire thing happens. So copyright is actually a bundle of rights. It consists of a team. It's not a solo game. It's a team game. So unless everyone gets benefited in that, really the music industry doesn't increase. And that's the reason why copyright is very important in our country, and it's happening now. So as far as the process of it is concerned, yes, in 1957 the law came in, and then when the law came in,
foreign societies, because Indian artists of that time were not very well aware, so they were considering how do we get money, etc. So there was a foreign or a UK society called the PRS UK. So the PRS was representing the authors and composers of Britain. So they came into India and they started looking at taking away the money for their artists in the country. So they appointed an agent in India, and that agent started collecting from wherever was possible to the radio stations and so on and so forth. And then ultimately in 1969, the first society was formed, which was called the IPRS, which is Indian Performing Rights Society. In 1969 it was formed, and you know who formed the society? It was formed by I.S. Johar, अच्छा, I shows up. by Beni Talwar, Oh my God. right? By S.N. Tripathi Saab. ऐसे त्रिपाठी जी. Seven Benny of Talwar कौन them. थे? Sorry? Who's Benny Talwar जी? Beni Talwar, producer. अच्छा, producer. Okay. So what happened is at that time, because in the UK and everywhere in the world, it is that there is always a so-called publisher. So what happens is there is a music composer and a songwriter. They are good in their art. So what they do is they write, they compose, but they do not know how to take it further. To take this further is a concept that has come into the world, which is called a businessman called a publisher. So there is a music publisher. So therefore, when UK society wanted to establish a society in India, which was IPRS, they didn't want to do it themselves because foreign companies were not allowed to do it. So therefore, these people, and therefore we had the producer lobby, as I told you the names, the producer lobby and the composer lobby like S.N. Tripathi Saab and others, they had got together and they made this IPRS. So IPRS was made on 23rd of August 1969. So it was as old as that now. And then obviously the people who were running them, I was perhaps a toddler, so I don't know, but at the time whoever the people were running them, they started doing cases against the cinema halls, asking them that हमारा गाना फिल्म का यहाँ बज रहा है तो पैसे दीजिए. अब वो तो भाई एग्जिबिटर लॉबी जो हैं वो नाराज़ हो गए क्योंकि उनके शेयर में से जा रहा था, एंड वो उस शेयर को दे विल डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स शेयर, देन द प्रोड्यूसर गेट्स अपसेट, so they couldn't do, the entire business was getting disrupted, so they took IPRS to court. Oh, अच्छी this is In 1969. हम भी सुन रहे हैं जैसे आप सुन रही हैं. हाँ. And 1969 से चलता गया, कोर्ट केसेस चलते गए and ultimately it reached the Supreme Court. And in 1977, the Supreme Court gave a judgment that if a composer or a songwriter gives his consent to incorporate his music in a film, he loses all his rights and the producer becomes the owner. And therefore, it was, in that sense, IPRS was defeated. And therefore, IPRS became little, defunct type of, they couldn't do anything. पहले contract में they would get the composer, lyricist to sign up. Irrespective. And only if there is a contract to the contrary, मतलब किसी composer ने या writer ने अपने लिए reserve करके रखा है, right? Then it is his. Otherwise, it's all gone. by default, By it's gone. default, it's gone. Okay. By default, it's gone. All to the producer, who's also the publisher, who's also And the. one more aspect that you should take a note, in that 1977 judgment, it was a two judge bench, Justice Krishna Iyer, he gave a footnote, thanks to him, but he gave a footnote. And in the footnote he said, I am amazed that the copyright law is only giving the rights to a composer and a songwriter, but I definitely feel that a singer should also get royalty. And I appeal to the government, to the legislature to set this anomaly right. In 1977 he said that, but that was a footnote. And as far as the composer and songwriter rights were concerned, anyway the judgment said no, it's gone. So IPRS became defunct. So from Sorry for cutting you in, but is this what was called master rights दे दिए थे? No, master right अलग होता है. अच्छा. ये है underlying works rights. This is called underlying works rights. Master right means the recording, sound recording, the master, जो बनता है, जो studio में बनता है, that is a master recording. So सबसे पहला जो जन्म होता है, जो माता पिता हैं, वो हैं composer
एंड लिरिक राइटर। माता कौन है पिता कौन है आप लोग देख लीजिए। नहीं, मगर कल्याण जी भाई ने बहुत अच्छा बोला था। बोला उसका मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ कि पिता जो है वो राइटर है और माता जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो उन्होंने बोला कैसे? तो बोले क्या पिता आता है 10 मिनट में गाना लिख के चला जाता है, माता जो है उसको महीनों लगे रहो, रिहर्सल कराओ, म्यूजिशियन बुलाओ। बिल्कुल तो सही। नाउ वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पिता कौन है और माता कौन है। करेक्ट, चलिए वो क्लियर हो गया। चलिए, तो दे आर द माता पिता, दे आर द माता पिता। वो जब माता पिता की राइट्स जब नहीं हैं, तो ऑब्वियसली जब भी वो माता पिता का जो रिकॉर्डिंग बनती है वो एक नई चीज़ होती है, तो उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, तो उसको इन्वेस्टर के राइट मिलते हैं। तो इनके राइट अलग हैं, इन्वेस्टर के राइट अलग हैं। तो दैट इज़ व्हाट द इन्वेस्टर राइट इज़ कॉल्ड द मास्टर रिकॉर्डिंग राइट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज द अंडरलाइंग वर्क्स राइट्स। तो कमिंग बैक टू 77 में जब ये हो गया, IPRS डिफंक्ट हो गई, और उस समय से लेके मैं जो इसमें पूरे कॉपीराइट में घुसा हूँ, मैं 1990 में घुसा। तो ये कह सकता हूँ कि 77 से लेके 1990 तक 13 साल तक जो है IPRS डिफंक्ट बॉडी रही, कुछ नहीं होता था। मैंने IPRS ज्वाइन किया 1990 में, 90 में, अगस्त 1990 में मैंने ज्वाइन किया था। और आई हैड एक्चुअली गिवन अवे माय अच्छा खासा चलता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, and I joined here. I don't know why, but I was of course destined perhaps to do it. I have no reasons to complain. I'm thankful to God that I was given this job. I love this job very much. So 1990 में जब मैंने ये ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है हम लड़ क्यों रहे हैं पहली बात, और मैंने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में है कि जो ओनर है, झगड़ा 77 जजमेंट में क्या था, जजमेंट में झगड़ा ये था कि भाई ओनर जो है वो प्रोड्यूसर है। ओके, मैंने सोचा अरे ओनर है ना, ओनरशिप का ईगो क्यों रखें, छोड़ो ना, पैसे से मतलब है आर्टिस्ट को। तो हर एक वर्ल्ड में ये है, हर एक कंट्री में है कि ओनर वो होता है मगर 50% उसको जाता है और 25 इनको जाता है, मतलब कंपोज़र को और राइटर को। तो मैंने कहा क्यों ना हम ये सिस्टम इंडिया में कायम कर दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो आई वेंट टू द प्रोड्यूसर लॉबी। एट दैट टाइम देयर वाज GP सिप्पी साहब वाज द IMPA प्रेसिडेंट। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप बन जाइए मेंबर, यहाँ 50% आपको मिल जाएगा, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं हूँ, आपसे पैसे ले नहीं रहा हूँ, देने ही आऊँगा। तब तक तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो सिप्पी साहब ने ये कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तब टॉडलर ही था, 18-19 साल का। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो राइट ही नहीं है, सारे राइट्स तो हम म्यूज़िक कंपनी को दे देते हैं। मैं बोला ओ, तो आपसे बात करनी गलत है, तो भैया मैं म्यूज़िक कंपनी से बात करूं। तो मैंने म्यूज़िक कंपनी से बात करना शुरू करी। म्यूज़िक कंपनीज़ अपने थॉट प्रोसेसेस में थी, तो दे वर नॉट वेरी वेलकम टू दिस एस्पेक्ट दैट वी आर द ओनर, वी डोंट वांट एनी मनी ऑल्सो, चलेगा बट वी डोंट वांट टू शेयर एंड एवरीथिंग, ऑल दैट इज हैपनिंग। संजीव, तब कौन से कंपनीज, शायद HMV जो अभी सारेगामा बनी है, उस समय म्यूजिक इंडिया अच्छा, होता म्यूजिक था, इंडिया। वीनस टिप्स, 1990, हाँ तब तक तो आ गए थे, टाइम, काफी ये आगे सब थे। थे। यूनिवर्सल, सोनी वाज नॉट देयर, पॉलीडोर था, पॉलीडोर वाज देयर, सो इट वाज कॉल्ड म्यूजिक इंडिया। म्यूजिक इंडिया, सॉरी। So that time, luckily for me and luckily for the industry, I would say that, is that I happened to meet रमेश तौरानी साहब। एंड रमेश तौरानी साहब से मेरी मुलाकात हुई उनके ऑफिस में। मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने कहा कि बता क्या बोल रहा है तू, सब लोग। सो आई टोल्ड रमेश भाई कि रमेश भाई आप आधा गिलास भरा देखो, आधा खाली मत देखो, अभी तो 0 ही चल रहा है, तो आप ये क्यों देख रहे हो, ओनर आप, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। तो ही सेड दिस इज़ वेरी सिंपल संजय, मैं करवाता हूँ। एंड देन ही गॉट ऑल द म्यूजिक कंपनीज ऑल्सो टुगेदर टू बिकम मेंबर्स। यस, रमेश तौरानी साहब इज़ द वन हु रियली स्टार्टेड दिस यूनिटी मूवमेंट। सो इन 1993 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1990 में ज्वाइन किया था, ये बात करते करते 93 तक हो गई। तो 93 में सारी म्यूज़िक कंपनीज़ जो हैं वो IPRS में एज पब्लिशर आ गई, एंड इन अंडर with the understanding that 50% will go to them, 25% will go to the writer, 25% will go to the composer उस गाने के।
और उस हिसाब से IPRS रिवाइव हो गई और हम मार्केट से पैसा कलेक्ट करने में कामयाब हो गए। तो जो पहले जब मैंने 1990 में ज्वाइन किया था तो इनकम ज़ीरो थी, तो 2004 तक मैं उसको तकरीबन 14 करोड़ तक ले आया था, क्योंकि हमने FM रेडियो स्टेशंस भी शुरू हो गए थे, तो वहाँ से भी पैसा लेना शुरू कर दिया। बिकॉज द पॉइंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ एनी कॉपीराइट सोसाइटी, it is the establishing the principle that you have a right. It's not the money, it's the principle कि हमारा हक है। तो वो हक करते 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 सारे रेडियो स्टेशंस मान गए थे, सारे टेलीविज़न स्टेशंस मान गए थे, सारी मोबाइल कंपनियां मान गई थी रिंगटोन्स के टाइम पर। मगर 2004 में कुछ ऐसा हो गया कि इंसानी तौर पर एक लालच आ जाता है या जो भी आ जाता है, तो उस हिसाब से देयर वर सम प्रॉब्लम्स दैट केम अप इन IPRS। और since I had given it 14 years of my honest services, I preferred stepping down, and I stepped down from that and I said कि भैया जो ऐसे जिस तरह से आप लोग बोल रहे हो उस तरह से काम करना है तो आप लोग करिए, मुझे माफ़ करिए। तो I stepped down, but in this entire interim period, you should know this, that in 1990 when I joined IPRS, in 1991 I and Lata ji were in one of the conferences in Delhi, and one of the ministers there, the senior central minister, in his speech had said something to the extent that singers are mere vocal instruments. Now, if you say this in front of Lata ji, obviously you can understand the whole thing. So I Which year was this? This was in August of 1991. And she just wanted to walk away, and then I said ki Lata ji, let's get back to the room, you finish your whatever you've come here for, and then I'll make you understand. And then we went up to the room. I made her understand that the mistake is ours. I was also, she used to love me, so I could have spoken to her that way. So I said, mistake is ours. बिना रोए तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं देती। तो क्या हमने कभी ये मांगा? आपका मांगा हुआ है, हमने सुना है बचपन से, that there was some you had raised this issue in the 60s and something had happened. But officially, have we really done that as a community? Then that is the time when she had told me that now you have to also promise me that we are going to fight for singers. मेरी जहाँ चले लगेगी ज़रूरत चलिए. That spread, and then Sonu ji came in, because obviously Sonu ji has been there right from day one. Sonu ji came in, then Alka ji came in, and Kavita ji came in. So we all used to meet at each other's house, and we used to take this further. And Lata ji was so kind enough कि तुझे जो चाहिए जहाँ चलना है चलो साथ में, everyone. So the entire evolution of a singer's right, I would give credit to all these four people who are amongst. Sonu ji is here. Lata ji was very passionate about it, and that's where the struggle for the singer's right started in 1991. So when this thing happened, together with establishing the rights of the composers and the songwriters, I was also simultaneously fighting for the rights of the singers. ये सब मामला जब चल रहा था, तो अब ये हो गया कि इसका फ्रंट फेस कौन बनेंगे, कंपोजर सॉन्ग राइटर के। तो उसमें हमने सब ने जाके नहीं संजय, फिर वो अभी कहानी यहाँ से मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं लंदन से होके आया था। मैं आई वाज डूइंग राज, फिल्म थी महेश भट्ट की। तो नदीम ने मुझसे कहा कि भाई अभी पैसा लेना बंद करो, पहले राइट अपना प्रिजर्व करो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो डिजिटल है, और अगर हमारे राइट्स हमारे पास नहीं होंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। 1,50,000 रुपया लेके इसे लाइफ में कुछ नहीं होना है। सो तुम चलो, मैं तुमको PRS में मिलवाता हूँ किसी गोरे से। सो ही टुक मी देयर। तो गोरे ने जब मेरी प्रोफाइल देखी तो मुझसे कहा कि आप चार्टर्ड फ्लाइट से आए हैं, आपका कोई आइलैंड है यहाँ पे? मैंने बोला मेरे पास, तुम आइलैंड की बात कर रहे हो, मैं प्रोड्यूसर के पैसे से यहाँ आया हूँ, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं कि मैं लंदन आ। बोलता कि यू आर लिविंग इन विच कंट्री समीर जी, ससीम। अगर आपने यहाँ एक आशिकी और एक साजन लिख दी होती ना, तो पूरी लाइफ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आते ही मैंने संजय को पकड़ा। मैंने बोला संजय तू इधर से निकल भाई,
अभी तुझे हमारे साथ आना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गड़बड़ है। एंड हम लोग, जैसा संजय ने बताया, हम लोग फाइट कर रहे थे कि इसको क्या करें, कैसे गवर्नमेंट तक लेके जाएं, इसको ये कॉपीराइट को करेक्ट कैसे किया जाए। लकली वी वर द लकीएस्ट कि हमको जावेद साहब मिले। और जावेद साहब से जब हमने बात कही तो पहले जावेद साहब थोड़े से हेजिटेट थे कि यार हम मिलें, चलें, करें, नहीं करें, बट उनको कहीं उनके दिल में आया कि नहीं यार, ये हमारी फ्रेटर्निटी का काम है, ये हमको। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार साहिर साहब ने लड़ाई लड़ी थी कि पहले रेडियो पे राइटर्स का नाम ही नहीं देते थे लोग, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी कि ना, सिंगर म्यूजिक एक्टर के साथ अगर राइटर का नाम आपने नहीं दिया तो हम बैन कर देंगे आपको। तो फिर उन लोगों ने नाम देना शुरू किया, तो उनके मन में एक जिद आ गई कि मुझे ये काम करना है। एंड इट वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उसी वक्त जावेद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, राज्यसभा मेंबर थे वो। ये हमारा लक था सब। ये हमारा लक था। अब उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सारे म्यूजिक कंपनियों के साथ मीटिंग की कि भाई हमें झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये राइट चीज़ है, संजय समझा रहा आपको, बेचारे ने इतनी मीटिंग की, आप समझ जाओ, हम कोर्ट कचहरी नहीं जाना, हम लोग साथ में बात कर लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें हो जाए। वो मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये रॉयल्टी नहीं, हम आपको भीख दे रहे हैं, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। और आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में भी हम गए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। जावेद साहब को तो यहाँ तक बोला गया कि तुम चुपचाप गाना लिखो, नहीं जो काम मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। उस दिन उन्होंने कहा कि अब आप लोग बिल्कुल कुछ मत बोलो। अब ये बात मेरी जिद पे आ गई है, अब इसको बिना किए मैं मानूंगा नहीं। सौम्या, यू कैनॉट बिलीव, 1 साल तक मेरे ख्याल से उन्होंने जो संजय और इन 3 साल जो तैयारी की, मैंने देखा है, मैंने देखा है, पूरी दुनिया का कॉपीराइट मंगवा के करके, पूरा फाइल तैयार करके, तब उन्होंने कहा कि अब एक डेलीगेशन लेके हमको चलना है सोनिया जी से मिलने। एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल माई फ्रेटर्निटी, फ्रॉम सिंगर टू राइटर टू कंपोजर, लता जी भी, सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं। और पहला जो डेलीगेशन गया ना, उसको देख के ही उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, उस वक़्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जावेद साहब को डर था कि अपोजिशन इसकी खिलाफत करेगा, क्योंकि अपोजिशन का काम ही है, कोई सही काम हो या गलत उसकी खिलाफत करो। तो उन्होंने बोला कि रुको। और जावेद साहब का कमाल है कि उनकी घुसपैठ जो थी वो अपोजिशन में भी उतनी तगड़ी थी। वो सुषमा जी, अडवाणी साहब, अरुण जेटली जी, ये सारे के सारे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग करवाई। और सब ने, जेटली साहब ने तो यहाँ तक बोला कि मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूँ कि इस कॉपीराइट के बिल को जितना रूलिंग गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, उससे ज़्यादा हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जावेद साहब का उस दिन स्पीच सुनो तुम कभी जाके, वो अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे भी, हर जगह। मतलब आज हम लोगों को उनका जितना शुक्रिया अदा करे हमारी फ्रेटर्निटी उतना कम है। और मैं तुमको सौम्या लिख के देता हूँ, अगर वो नहीं होते ना तो इट वाज इम्पॉसिबल टास्क। वो यही लोग, म्यूजिक कंपनी वालों ने बोला कि सर, मुझे कितनी बार ऑफ़र आया सौम्या कि आपके बहुत पैसे पड़े हुए हैं, आप जाके ले लो, एक पेपर साइन करना आप कर दो कि आपके सारे राइट्स जो हैं वो हम म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं। हमने बोला नहीं, अब मैंने जावेद साहब का हाथ पकड़ा है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि कम से कम आपकी जनरेशन को तो हम मुकदमे लड़ा के ख़त्म कर देंगे, पैसा मिलने की तो बात छोड़ दो आप। सो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है आज जहां हम पहुंचे हैं, जो संजय ने बोला कि हमने 14 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सम्या, तुमको मैं बताऊं, तुम सोच नहीं सकती हो कि इस साल, पिछले साल अभी 24 में जो पैसा IPRS से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो 14 करोड़ की शुरुआत होके 500 करोड़ तक गई है। और अभी भी ये कुछ नहीं है, दिस इज द पीनट्स। ये इतना बड़ा काम है। और कितने लोग आज पूरी, ये जो हमारे जो गुजर गए हैं लोग, उनकी फैमिली सरवाइव कर रही है ऑन द रॉयल्टी ओनली। कैन यू इमेजिन? वरना जैसे होता था ना कि एक कंपोजर रास्ते पे भीख मांगते हुए पाया गया, एक राइटर जो है वो कंघी बेच रहा है सड़क पे बैठ के, वही हाल होने वाला था सबका।
बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर राइटरों की मैं बात करूं, उनकी भी ये हालत हो जाती है। सो दिस इज द स्टोरी। एंड सौम्या, कमाल है कि आज तक मीडिया में किसी ने इस चीज़ को उतनी सीरियसली लिया ही नहीं। ये कितना बड़ा इशू है। अभी तुमने पूरी कहानी सुनी फ्रॉम बॉटम टू टॉप कि कैसे कैसे हम गुजरे हैं, और हम लोगों ने कई बार सपोर्ट मांगा मीडिया से कि भाई आप प्लीज़ ये बात पब्लिक डोमेन में लेके आओ। कोई बात करने को तैयार, उनको लगता था अरे यार ऐसे ही कोई मैटर है, इस पर क्या ध्यान दें। सॉरी सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं बनी थी तब तक। नहीं, बट द क्रेडिट गोज टू यू। उसने पहले ही तुमको थैंक्स कहा कि तुमने एक ऐसा मुद्दा उठाया, और ये बड़ा राइट टाइम इज राइट, बिकॉज अब क्योंकि इतने लेवल पे काम हो रहा है, सो दिस आई थिंक इज अ परफेक्ट time to talk about. And as far as singers is concerned, as I was saying earlier, Lata ji was backing it from behind, and she was always talking to the Prime Minister, Sonu ji, and we all were writing letters, etc. We were doing this job as far as singers are concerned, because the main focus for Javed Saab was always कि composer and writer का rights जो अभी फ़िलहाल IPRS नहीं दे पा रहा है, उसको पहले establish करिए, and साथ साथ since I was also attached, we were fighting for the rights of the singers too. And then ultimately, on 21st of June 2021, the law was amended. The copyright law got amended, and that's a historic amendment that is there. And the major credit of the getting that amendment goes to Javed Saab, and he has said all that in his lovely speech that he spoke in the parliament. And the law was so great that it now started saying, number one, irrespective of any artist giving away his rights, because the artist is like we always have been saying, and this was our stand every time, was an artist is just like bonded labor. Other is the zamindar. Zamindar बोलता है यहाँ अंगूठा लगाओ, हमारा आर्टिस्ट वहाँ अंगूठा लगा देता है, तो ही हैज़ नो से। अगर वो बोलेगा कि इस पे मैं नहीं राजी होता हूँ ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो ज़मींदार बोलेगा ठीक है मत काम करो, कोई और आ जाएगा। सो दैट इज़ द वे इन विच वी कन्विंस्ड द पार्लियामेंट दैट protection is needed, copyright protection is needed, and royalty is needed. So the law changed in 2021, saying that whatever is the agreement that is signed between the artist and the producer or anybody else, the right to receive royalty will always be there for an artist. So this, as far as the composer and songwriter, was strengthened. But as far as the singer is concerned, this was a new right that came into existence. In addition to the composer and the writer and the music company, their shares will go to them. Singer is also entitled to receive royalty for wherever his recorded performance is commercially exploited. And that is the reason why then ISRA was formed. The Indian Singers Rights Association was formed in 2000. सामरा हो गया है 2013. Performance में ISRA has become because we have also incorporated musicians, so Indian Singers and Musicians Rights Association. Sonu, I would want to hear from you, like what was the catalyst? What हमारे drove you towards उसमें this? देखिए बहुत सारे सिंगर्स जुड़े और जुड़ के फिर निकल भी गए। अकेले बताऊंगा नाम उनके, लेकिन ऐसे बहुत सारे जैसे शान हैं, इन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा हर जगह। और मतलब इससे बोलते हैं आश्वस्त दिमाग के लोग जो होते हैं ना, सभी हम अपने पीक में ही काम कर रहे थे, है ना। ऐसे पीक में काम करना और फिर लोगों की इल विल लेना या लोगों से ये बोला भाई तुम लोग बड़े चौधरी बन रहे हो, लेकिन हम लोग चौधरी नहीं बन रहे थे। हम कुछ ऐसा करने के लिए हमको भगवान ने डेस्टिन कर रखा था कि जो फ्यूचर में इस जो चीज़ गलत थी उसको सही करने के लिए था। हम किसी से लड़े कभी नहीं, ना मैं, ना शान, ना अलका जी, हम लड़े नहीं किसी से। हमने कभी किसी से मुँह जोरी नहीं की या हमने वो नहीं किया। इनफैक्ट लोगों ने हमारा काम छीना, लोगों ने बोला उसको काम नहीं कराते, कई साल हमारे ऐसे चले गए उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में कोई स्टैंड्स पे अड़े रहने के लिए बहुत ग्रेविटी चाहिए, डेप्थ ऑफ कैरेक्टर चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट उसका फ़ायदा उठाया कि ये लोग नहीं कर रहे तो फिर अभी ऐसा तो उस वजह से हुआ। लेकिन आई रियली सैल्यूट ऑल आवर सीनियर्स ऑल्सो
हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, शान हैं, हमारे कुछ जूनियर्स भी हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। तो आई सैल्यूट ऑल द पीपल जिनके अंदर में ये मादा था कि वो एक साथ मिलके हमको किसी को अकेला ना छोड़ें। एक इंसान में हिम्मत बंधी रहती है जब देखते हैं कि कुछ कलीग्स, कुछ सीनियर्स, कुछ कंटेम्प्रेरीज, कुछ जूनियर्स हमारे साथ में हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम लोग मीटिंग्स करते थे और कोई आता ही नहीं था। 10-12 लोग। 10-12 यूनिटी की हमेशा प्रॉब्लम रही है ना। तो बड़ी सी हॉल लेते थे और जितने लोग स्टेज पर है उतने सामने होते थे। तो हमने वो भी देखा, फिर हमने समहाउ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। This would be initial years. नहीं, बीच में एक्चुअली इनिशियली आते थे, इनिशियली आते थे, बीच में लगा कि ये तो गए अभी इनका। वो बीच में बताइए, वो कोविड वाला जो बेच दीजिए। हाँ बताना, हाँ क्या था कोविड के टाइम But इसकी पे वजह क्या थी, मतलब कई मेंबर्स ने, कई एक गुट के मेंबर्स ने ये कहा कि भाई अब तो वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। हाँ तो अब जैसे जितना ही बैंक में रखा है ना पैसा, वो बांट दीजिए, इसरा को बंद कर दीजिए, देखते हैं भगवान। एक्चुअली कई सिंगर्स ने ये अज्यूम कर रखा था कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें अज्यूम किया था या उन्हें कहा गया था, पता नहीं। लेकिन कईयों को हम जब अप्रोच करते थे कि प्लीज़ यू नो जॉइन, वी दिस ऑलवेज जितनी नंबर्स, स्ट्रेंथ इन नंबर्स जैसे कहते हैं, वो चाहिए हमें, तो मुकर जाते थे। कहीं तो साफ से कह दिए कि वो करेंगे तो कहीं नाराज़ ना हो जाए जो म्यूज़िक कंपनीज ये हैं हमसे। पर ये मुखर्जी होके भी नहीं मुकरे। नाम मुखर्जी नहीं तो मैं कहीं से जाकर कहता था तो कुछ ना कुछ बहाना बना के पतली गली ले लेते थे। क्या है, बट ठीक है, हाँ, किसी ने आपको कहा नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। शायद देख रहे थे हमारे साथ हो रहा है तो बोले कि हमें इनकी संगत में नहीं है। ये लोग हमको बर्बाद करने के चक्कर में पड़े। नहीं बोले बट अकेले डूब रहे हैं, हमें खींच कर नीचे ब्रंट जाएंगे। जो बसा है वो सोनू जी ने सहा है, एक्चुअली ये सफर्ड Because he also hit he out, was boycotted he called it many of his what it songs was. were redubbed by other people except just because he was leading this particular aspect. नहीं, और जितने लोग जुड़े थे सबको बहुत नुकसान हुआ। रीड अप तो बहुत सारे बहुत लोगों गाने को। हुए थे, और लेकिन देखिए, मगर एक अच्छा हो गया, मुझे डर था आप कह दें तो वो कहेंगे कि नहीं पसंद ही नहीं आया था इसलिए कर दिया, तो यू नो और भी ये हो जाता है। मगर अब एक बहुत अच्छा हो गया कि अब सब साथ में है, इवन म्यूजिक कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल म्यूजिक कंपनी नाउ विद अस। एवरी म्यूजिक कंपनी, उनके भी एक, मैं कहूँगा उनका भी बड़प्पन है, उन्होंने दिल पे बात नहीं ली। और अब जब सलीके से सब आ गए तो सारे, चाहे वो टी सीरीज हो, चाहे वो ट्रिप्स हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो सारेगामा हो, चाहे वो टाइम्स हो, एवरीबडी, सोनी, सब साथ। But what triggered this change? मतलब क्या realization क्यों हुआ? आई थिंक सेंसिबल पीपल, लोगों में ना लोग इवॉल्व हो गए। Change of power. हाँ, लोगों में थॉट आ गए। लोगों को लगता है भी है कि यार कितना लड़ेंगे, और अच्छी बात है, लोग सोचेंगे कि साथ साथ मिलकर चलेंगे तो काम अच्छा होता है एंड हार्मनी बनी रहती है। सो सडनली ऐसा हुआ लोगों में, आई थिंक। नहीं, और 2022 क्या होता है जब एक यूनिटी के साथ आप गवर्नमेंट के पास भी जाओ Government ना, का भी तो एक- ये उनको भी लगता है कि नहीं यार, दे ऑल आर यूनाइटेड। तो अभी वहाँ जरा एक आदमी भी विरोध में खड़ा हो जाए ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि आप देख ले, कोई भी पार्टी डीजे के बगैर कंप्लीट है आज? आप बताइए सौम्या जी। नो, ओके। डीजे को लोग 5-5 लाख देने को तैयार हैं, मगर उस कंपोज़र को क्या देंगे, उस राइटर को क्या देंगे, उस सिंगर को क्या देंगे जिसका ट्रैक उस पर बज रहा है, और वो जो बजा रहा है, वो ट्रैक बजा रहा है, जिसको मिक्स कर रहा है, वो जिसने पैसा लगाया उसको क्या होगा? ये चारों को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जो हम बुक करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एयरवेज, रोडवेज, वेरेवर, दे आर मेकिंग मनी, दे आर चार्जिंग पीपल फॉर म्यूजिक। बॉलीवुड नाइट, अरे तो उसमें आप फोक म्यूजिक बना लीजिए ना, टू प्रमोट कल्चर ऑफ द कंट्री, वो नहीं बजाएंगे, बजाएंगे वो बॉलीवुड। तो द पॉइंट इज प्लीज पे रॉयल्टी फॉर दिस, दैट इज ऑल। नहीं, और उसमें भी एक इशू है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी तुम बात कर रहे थे, मैंने अभी आने के पहले मैं बात कर रहा था, जैसे फॉर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है, अभी भी देयर आर द इशूज इन दैट, कि ये जो गाने रिक्रिएट हो रहे हैं उसमें जो भी म्यूजिक कंपोज़र या राइटर रिक्रिएट कर रहा है, वो एक तो कंपनी से पैसा लेता है, पहली बात। ओरिजिनल कंपोज़र राइटर्स को कोई पैसा नहीं दिया जाता, जो उसको मिल गया वो मिल गया। अभी उनकी रॉयल्टी में भी उनको 50% चाहिए, जबकि उस राइटर ने केवल एक लाइन ऊपर लिख दी है एंड ही डिमांडिंग 50% रॉयल्टी। ये वेरी अनजस्टिफाइड है। इसको किसी भी तरह से अब हम लोगों को रोकना ही पड़ेगा। करेक्ट संजय ने बोला कि भाई आपने जितना % काम किया उतनी रॉयल्टी आपको मिलेगी,
आपने 2 लाइन लिखी है, आप 2% रॉयल्टी ले लो, मगर आप 50% रॉयल्टी क्यों डिमांड कर रहे हो? तो एक जबकि गाने की पॉपुलैरिटी उसकी ओरिजिनल हाँ, गाने से ही है। मेन जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो गाना तो उसका है। They're cashing in on the अच्छा, popularity. पहली बात तो ये है कि आप उससे परमिशन नहीं ले रहे हो, विदाउट उसके परमिशन आप रिक्रिएट कर रहे हो। चलो, हमने शायद एक ज़माने में लिख के राइट दे दिए होंगे, तो हम नहीं चाहते कि इस पे फिर कोई केस खड़ा हो, फिर कोई इशू खड़ा हो। अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बट अभी 1-2 इश्यूज़ हैं, पहले वो सॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली ये, अभी अब तुमने एक इंटरव्यू मेरा छापा था जिसमें मैंने बोला था कि आज इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में तुम कितनी, मतलब शर्म की बात है कि राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर किसी का नाम ही नहीं दे रहे हो। वो AR रहमान हो कि वो प्रीतम हो कि वो शंकर एहसान लाए हो कि कोई भी हो, दे आर नॉट गिविंग एनीबॉडी नेम। व्हाट इज द रीजन भाई? आप कैमरामैन का नाम दे सकते हो, आप डायलॉग राइटर का नाम दे सकते हो, मगर म्यूजिक डायरेक्टर और कहने के लिए आप कहते हो कि 50% कंट्रीब्यूशन जो है फिल्म के हिट होने में म्यूजिक का होता है। मैं एक छोटी सी बात है कि हम ऑफ कोर्स बॉलीवुड या हिंदी फिल्मी गानों की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो आया है ये रॉयल्टी का सिस्टम, ये चाहे हर नॉन फिल्म, डिवोशनल, सूफी, सबके हर लिए। जॉनर के लिए है। नहीं, तो ये ना उसका सोचे बड़ा किसी के clear लिए, है ना ये ना साहब। सोचे कि हम सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। कॉपीराइट में बहुत अच्छा लिखा है। नहीं, जो देख रहे हैं इंटरव्यू उनको ना लगे वही नहीं कि अगर आप बजाएंगे तो आप पे करेंगे, जी, आप बिना पे किए हुए बजाएंगे नहीं, ये लिखा Pay हुआ to है। play. प्ले यू पे। तो 2022 में ये हो गया था कि मैं आपको बताऊं कि 2022 में कोविड के बाद 2022 में ये हो गया कि हम सब बैठे, सारी म्यूज़िक कंपनी। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द म्यूज़िक कंपनीज एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट better sense prevailed, and we all sat together like very matured people, and we came to a conclusion that we all are suffering. I'll ask you a question, you can answer that. Let me reverse the role. So, how many events do you think take place in India? Take a wild call. Events, not huge events, even small events. Crores. Okay, let us take 1 crore. 1 crore events are happening every year in our country. easily. Okay, easy. इतनी बड़ी, Every I इतना am बड़ा saying, देश है। I am saying each of them beggarly, if they give us 10,000 rupees, 10,000 तो दे सकते हो, right? आप दारू पार्टी रख रहे हो, इसमें इतना खर्चा करो, 10,000 दे दो यार इन सब के लिए. We are talking about 10,000 crore rupees, right? That should be the royalty. Simple, okay? Do you know the factual figure? जो ये IPRS, ISAMRA, PPL, every RM, everyone that every body is collecting, March 2024, they have only collected 340 crores. 10,000 crore, 3,400 crore. This is only, I am talking about events, restaurants, departmental stores, hotels, restaurants, कितने वो अलग से. So I am just saying 10,000 crores का 340. That is where the gap is. Therefore, all the music companies and we also as singers got together and we said, okay, let's bury this hatchet. अभी क्या हो रहा है, सामने वाला जो यूज़र है वो कहता है कि अरे इसको भी दें, आपको भी दें, इनको भी दें, कितने लोगों को दूं एक ही गाना बजाने के लिए, आप लोग सॉर्ट आउट कर लो. तो हम मार्केट में गए, हमने कहा कि ठीक है, हमने सॉर्ट आउट कर लिया, हम बाय बाय, अब बोलिए, अब आप दीजिए पैसे, राइट? So we all became one and we said, let's not fight over a small pie. Correct. Try to increase this pie from 340 to 500 crores to 1,000 crores and then to 10,000, whatever. And then let us have our share. Why would anybody have any problem? And the music companies, the biggest of the music companies have said, Sanjay, we have no problem to give you the share as of a singer is concerned, provided our thing is increasing, even we are. So it's a game of a win-win situation for all. And that is where our minister, Mr. Piyush Goyal ji, was very helpful, and he came forward and he helped us to establish this unity. And he is always for and supporting that the royalties should go to the artist concerned. And luckily, this money of 340 crores is now growing after we have joined hands. And Mr. Piyush Goyal has now, in October of last year, has also taken a step further
by requesting the industry and all the organizations to get together and form a one window licensing system where people don't have to run around. 10 people don't go to them, because today what happens, if you are playing music here, an IPRS will come, an Isamra will come, a PPL will come, an RMPL will come, and Novex will come. So there are 5 people coming in asking you for licenses, and then that amounts to about 5 or 10 lakh rupees. So it is important that a one window is formed, and a one window formation will have a win-win situation for everyone. The event managers know that they just need to pay this, and they need to pay one amount, then वो पैसा one window में आ गया. अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितना बढ़ जाना चाहिए. 100 रुपये आए, 100 में से इनको कितना, इनको कितना, इनको कितना, इनको. तो ये कैसे डिसाइड होता है? हाउ इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस? हाउ डू रॉयल्टीज 3 मीटिंग्स में वर्क गया आउट? हाँ मतलब It's very क्यूरियस टू नो कि कौन डिसाइड करता है किसको कितनी So रॉयल्टी Piyush Goyal मिलेगी? ji has constituted this committee called a one window committee. Anup Jalota ji is the chairman of it. I am the convener of it. We have had about 6 meetings, and luckily, by God's grace and thanks to everyone, we are all on the same page. There is no fighting. Okay, so we are first deciding that what should our tariffs be. कि एक होटल को अगर वो गाना बजाना है तो उसको कितना हमको देना चाहिए, सबको मिला के, एक अलग अलग नहीं, सबको मिला के एक फ़ी कितनी देनी चाहिए. We are deciding that. It's now literally coming to an end. Once that money comes in, how is it going to be distributed amongst us? That's also nearly 95% over. There is not much confusion over that, luckily again, because so I think a very positive atmosphere has grown over the past couple of years as far as the copyright system in our country is concerned. पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए, बिकॉज उनसे भी सब लोगों की पर्सनली कि अगर वो हमारे इतने फ़ैन हैं और हमको इतना चाहते हैं तो बहुत पीनट्स उनके लिए कुछ नहीं है वो पे करना, मगर उससे आर्टिस्ट कम्युनिटी को ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगी मैं बोलता हूँ आप 10 रुपये ले लो, उस 10 रुपये से कम 10,000 लोगों की ज़िंदगी सेफ हो सकती है. As singers, Sonu and Shan, you all have been in this mission for so long, and now that it's bearing fruit, and does it feel satisfying as an artist? मतलब क्योंकि आपका तो डबल रोल रहा है एक तरह से, you were part of the mission and now you are reaping the benefits of this. कई सिंगर्स, कई मतलब कई तो ऐसे थे जो बोर्ड में रहते भी मतलब भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है. कई बार हम भी टूट जाते थे कि ये होगा नहीं होगा, 2 कदम आगे चल रहे हैं, 4 कदम पीछे जा रहे हैं, हो क्या रहा है. तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ऑफ कोर्स वी फील इट्स वेरी सैटिस्फाइंग. बहुत अच्छा लगता है. और इनको डबल हैप्पीनेस है क्योंकि माही आ रहे हैं ना, माही मार्केट में आ गया है, माही मार्केट में आ चुका है, तो अब इनको डबल हैप्पीनेस है. नहीं, वो सारे सिंगर्स जो हमारे पे शक कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं लोग, अब तो कह सकते हैं देखो हुआ है, सबके घर पे चेक्स आ रहे हैं. सो इट्स एक्चुअली यू फील कि कुछ आप कोशिश करते हो और फिर उसका जब एक अच्छा नतीजा होता है तो उसकी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है, और वो हुआ है. बिल्कुल. एंड सोनू, फॉर यू, आई मीन यू वर फाइटिंग, आपको तो बॉयकॉट वगैरह करा था, एंड फ्रॉम देन टू नाउ, फर्स्टली आई वुड वांट टू नो व्हाट केप्ट यू गोइंग बैक देन. मतलब ये कौन सी आग थी व्हिच और बढ़ गया kept the battle alive? मुझे बस ये खुशी है कि अब सब ठीक हो गया है और देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल. सबका एक साथ अच्छा लगता है मुझे जब हमारे मीटिंग्स होती हैं, सारी म्यूज़िक कंपनीज आते हैं, चाहे मेरे घर पे हो या कहीं और हों, हम लोग सब प्यार से मिलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मस्ती करते, बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन अहेड, द वे अहेड. मुझे खुशी होती है, और ये भी एक अच्छी बात है कि अब उनके दिमाग से भी निकल गया मेरे लिए जो था, तो आई एम बिजी अगेन. मैं आपको बताता हूँ, जिस बात का क्रेडिट हमको जाता है 100%, संजय जी भी और समीर जी भी और शान मानेंगे, हम लोग ने कभी भी नीचे गंदी वाली लड़ाई नहीं की है. हमने कभी अनरीजनेबल डिमांड नहीं की है, हमने कभी किसी का आर्म ट्विस्ट नहीं किया है. हमने जस्ट बिकॉज हमारे साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो हमने कोई ऐसी मांग कर दी हो जो एकदम ऑब्नॉक्शियस हो, ये बात का तो मैं आपको वादा करता हूँ और मैं पूरा गारंटी से बोलता हूँ, ना किसी लिरिक्स राइटर ने, ना किसी कंपोज़र ने, ना किसी सिंगर ने, ना ही संजय जी ने, हमने ऐसे किसी ने भी. और कभी कभी हमारे फ्रेटर्निटी में लोगों की ना अनड्यू डिमांड्स आती थी तो हम समझदारी से उसको दबा देते थे कि भाई ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए. हम लोगों ने बहुत सलीके से
अपने अपने जो हमने एक बनाया था, जो योजना बनाई थी हमने, जो सोचा हुआ था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा, बहुत सोच समझ के बड़ी डिग्निटी से और रीजनेबल तरीके से हमने अपनी बात को किया हमने, वरना कोई और होता हमारी जगह पे हाँ, ना और कुछ हो खुद जाता। चढ़ के उल्टी सीधी बातें बात करते थी, हैं। लेकिन अड़े भी रहे हम। अड़े अड़े रहे आसानी से। हम अड़े रहे क्योंकि हमें पता था कि हम जो मांग रहे यहाँ हैं तक करो वो वो सही रीजनेबल है, है ना, वो ऐसा reasonable हाँ, इतना तो होना हमने कभी ये नहीं था। अनजस्टिफाइड डिमांड कभी कभी किया नहीं ही किया ना समीर जी। और कर सकते थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल कर सकते बट थे। नहीं किया। नहीं जावेद किया। साहब का भी हमें साथ नहीं, जो हम आपसे कह रहे हैं, जो हमारा हक है, हमको दे दो हम भाई। अपने हक की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आज हमारे साथ में गवर्नमेंट है तो हम चलो हाँ, अब कुछ ये भी भी मांग करो। रहे ऐसा हैं, नहीं नहीं, कभी हमने किया, कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया। और इसीलिए म्यूजिक कंपनी ने जब ये रियलाइज किया कि नहीं यार, ये लोग राइट ट्रैक पे हैं भाई, ये लोग कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सफरिंग अगर कोई कम्युनिटी रही है तो म्यूजिक कम्युनिटी रही। सबसे मिनिमम पैसा अगर किसी फ्रेटर्निटी को मिला है तो म्यूजिक को ही मिला, म्यूजिक फ्रेटर्निटी को। आप और स्टारों को देखो कितना पैसा, अभी दे आर आल्सो मेकिंग। अगर आप कंपेयर करोगी कि स्टार्स जो चार्ज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम लोगों को पीनट्स भी नहीं बिल्कुल है, पीनट्स भी नहीं है। जबकि कहने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन 50% है, बट पेमेंट में हमारा जो है वो 5% भी नहीं। 5% भी नहीं In है। fact, you're right. And मेरा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस इंटरव्यू का, उसमें I called this phenomenon as the democracy of music. Correct. Because these bodies are of the musicians, for the musicians, by the musicians. That is how I perceived it. And in bodies like this, where you know musicians are the drivers, आप आर्टिस्ट भी हैं जो रॉयल्टी लेंगे भी, and you are part of decision making also. How do you strike a balance? How do you ensure transparency in a situation like this? No, that is a primary focus from the beginning, and आज thanks to technology there is a dashboard, there is, I mean, ऐसी technologies अभी हम लोग ने include See, किए like हैं. we have a We can dashboard, explain it to you better. and the distribution that we make is not based on anything like that. You know that I don't like this fellow's face, so I'm not going to. No, not. Neither can I, as a managing director. Neither can the chairman do anything. None of us can do anything. So the royalties that we distribute is distributed based on the actual exploitation of the song. It does not mean if you're a member, you are going to get royalty. No. If you are a member, you'll get royalty if your song gets played. If it doesn't get played, you don't get paid for that song. If the more it plays, the more you get. The less it plays, the less you get. Another aspect, like for example, when we distributed radio royalties, we distributed radio royalties based on the aspect कि वो रेडियो पे जो गाना बजा कौन से सिटी में बजा, A+ में बजा कि कोई CD कोई टाउन में बजा, तो the value is different. एक गाना जो A+ में बजा होगा मेजर सिटी में, obviously there the revenue is more, the advertisement revenue is more than a B, C, D town. Similarly, even if it is played in a city, which time of the day was it played? Again, because of the ad revenues. Ad revenue coming in morning at 2 o'clock or 3 o'clock will be way cheap. So even the royalty will be based on that. So everything is computerized, everything is technically advanced. We have a dashboard. We are now working on making that dashboard available to our members to see it from their house. Like an app you can. So they just can, check. with an app, that they can see it, whatever they want. Your song was लगेगा played तो here. अच्छा. So we give them details where your song was played, which city was it played, which radio station was it played, what was the fade in, fade out time, everything is given. So from a transparency point of view, everything we have been keeping that as our focus because it is money. हमारी कोशिश है, देखो जावेद साहब ने कोविड के पीरियड में वो राइटर जिनका एक भी गाना नहीं था, मतलब एक गाना रहा हो बिल्कुल बजाने को, उनको भी उन्होंने पैसे भिजवाए हैं। कितने करोड़ रुपए ड्यूरिंग द कोविड जो दूसरों की हमारी जो रॉयल्टीज थी उसमें से निकाल के उन्होंने बोला नहीं, ये टाइम ख़राब चल रहा है, हमारा दिस इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर पीपुल, सबको हमने पैसा भिजवाया। सो कहीं ना कहीं आज जब भी कोई बीमार होता है, अभी हम लोगों ने कम से कम 2 ऐसे राइटर म्यूजिक एक्टर जो हॉस्पिटल में गए, उनको काफ़ी पैसा हमने, उनको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, किसी को कुछ हुई, उस तरह का भी काम हम कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी रॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। अब कोई कहीं से उठ के कोई बात करे तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उस पे जाओगी फिर तो कुछ काम आप कर ही नहीं सकते हो ना। संजय जी, लेकिन ये रॉयल्टीज, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ अ सॉन्ग रिलीजेस टुडे एंड इफ इट्स प्लेइंग अक्रॉस ऑल रेडियो प्लेटफॉर्म्स, टीवी एक्सेट्रा,
does the singer start getting, does everybody start getting royalties from tomorrow? Yes. Like from today? Yeah. That is the time that has now come. It was not there a couple of years back, but now yes. So now, whichever genre, whichever language song, wherever it is played, the royalty starts ticking. And is there a cycle of crediting and? Yes, because by the time the royalty will come to the society, by the time that it gets analyzed, and by the time it reaches for distribution, it usually takes about an year. A year. Which is So why I all, want to you know, request every singer, musician to register with Isamra. Because we have Be to a have the member. details. Who has Without- written it, who has yeah. composed it, how many performers are there, how many musicians are there, all those details have to be kept in our database. And then it gets distributed. But for such a machinery to work, I mean, हमने बात करी कि करोड़ों event होते हैं हर दिन. Correct. Who's tapping all this? I mean, Absolutely. कहाँ पे किसी गांव में कौन सा Good गाना question, बजा, good कौन सा question. डीजे बजा? So therefore, my first thing that was there, that every citizen of India should account himself morally first. वो He issues should come है forward. वो issue So are we बहुत saying बड़ा that a But- lot is going unnoticed even now? Yeah, Of course, oh of yes, course. 90%. अच्छा. Second is that, of course, IPRS, and we did have it, but now we have dismantled that, because now we are dealing with the music companies, and we are having a long-term relationship. But yes, then we have to establish our own infrastructure in every town and places. The person goes into the market, searches, usme bhi people keep on saying, no, aisa kuch nahi hota hai, go. And then somebody will say, oh, my brother is not there, I'll ask him and then come back to you. Other will say, No, and aap music baja they rahe will ho. wonder why is the money going into this so much. इतना Yeah. क्यों? वो ये नहीं सोचेंगे कि इतने सारे लोगों को you have to employ, ये करना है वो करना है. तो वो सब So वो the सब भी आ point is, जाएगी you know, शक like केस पे. if suppose my person goes into the market and says, ये जो आप म्यूजिक बजा रहे हो ना, इसका पैसा लगता है देने का. लो जी, बंद कर दिया. अब नहीं ये सब देता. हुआ है. No, So, you know, I was actually just thinking that if a music, for instance, if a song plays at a big event in Bombay, vis-a-vis a song playing at a wedding in Bahraich, for Correct, example, correct. just naming it like that, does the value for giving licenses, etc., yes, does it that also differs. change? It differs. But that's why I'm saying that this one window concept that we are talking about, which the government and Piyush Goyal ji is very interested to get established, is this only. That everybody, like an income tax, should become responsible and pay. So that's and one thing, let me take this opportunity of saying, everyone should treat the societies not as an anti-social element. Okay, that is what you are saying. You've been hearing all these things, even I hear it. Actually, the societies are serving a social cause. Please treat them as a pipe. They are a pipe between the artists and the owners of copyright and between the users. The law says if you play music, you have to pay for it. If you don't pay, you are becoming illegal. Does any citizen want to be illegal? No, let us treat it that way. But if they don't want to be illegal and they want to pay, the question is, whom do they pay? If I want to play a song which is written by Samir ji, sung by Sonu ji and Shan ji, released by, say, HMV, I have to go for all these 4 people and ask them, please give me permission. Okay, what would you take? He will say, I'll take X. He'll say, I'll take Y. He'll say, it's crazy. What happens when The somebody society, says no? the society acts as a one window. Yeah. He says, Mr. User, don't worry. You pay us 10,000 rupees. We will give it to them. No problem. That is the idea of a copyright society. Is there the an cop- action that can be taken against somebody who refuses to do this? Yes, that is a criminal offense. It's a criminal offense. You can be arrested for 7 days and fined for 2 lakh rupees. And for a subsequent crime, you can be charged 2.5 lakh rupees. Correct. Can I ask one question? आप लोग पता नहीं आंसर देंगे कि नहीं. Like, which is that one song which has got you most royalty as an artist? अभी तो शुरू हुई है. अभी तो शुरू ही Okay, नहीं हुई है. let me give you this, that I'm proud that at least as a Samra, we now reached a situation where one song, I wouldn't name the song, but one song has reached the level where that one song has got 15.5 lakh rupees. Why won't you name the So song? we are coming to that level.
That songs Collection are हो रहा है। actually now coming up to that level. भाई क्योंकि नाम हमारा बता ही नहीं दो है लोग उसमें। इतने क्यूरियस हैं नहीं, और मुझे सौम्या मुझे तो सच में नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे कंफर्म और- पैसे का मामले में नहीं बोल और रहा। दूसरा क्या होता है नजर ना लगे। सौम्या, इसका बड़ा राइट जवाब इसलिए भी नहीं हो सकता कि कई बार क्या होता है, जैसे जैसे एक गाना भी आया जैसा तुमने कहा और उसकी बहुत रॉयल्टी आई, बट जैसे जैसे वो गाना धीरे धीरे पुराना होता जाता है वो उसकी रॉयल्टी कम होती जाती है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार टॉप पे आ गया तो जिंदगी भर वो टॉप अच्छा पे ही चलिए इस रहेगा। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। सबसे पहला गाना कौन सा था जिसके लिए रॉयल्टी मिलनी शुरू हुई थी? ये तो संजय को पता होगा, जब इसने डिस्ट्रीब्यूट की था 14,000 रुपीज़ आएगा आने वाला, आई एम सेइंग IPRS के टाइम पे। फॉर इसरा के टाइम पे द फर्स्ट सॉन्ग वाज लग जा गले, लता जी का, दैट वाज 51,000 रुपीज़। दिस वाज इन 2013। और इतना अच्छा लगा था, मुझे याद है जब पहली रॉयल्टी इसने डिस्ट्रीब्यूट की थी, कौन सा सब होटल आए था थे वो? पाम ग्रो में। तो बख्शी साहब, मैं, मजरू साहब, ऑल लेजेंडरी पीपल, यू नो, एवरीवन। तो सबको बंद लिफाफे में दिया गया, बताया नहीं गया किसको कितना मिला। तो हर आदमी को एक्साइटमेंट थी कि यार बाहर निकल के जल्दी लिफाफा तो खोलो। बाहर निकल के नहीं, टॉयलेट हाँ, टॉयलेट में जाके और जब खोला तो किसी को 15 रुपया, किसी को 2,000, किसी को 15,000। तो मैंने बख्शी साहब से मस्ती की, मैंने कहा पापा जी आप, बोले चल अभी तू अभी रॉयल्टी पूछ रहा है मेरे से, तुझे पता है सबसे ज़्यादा गाना मैंने लिखा है तो मेरे को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिली होगी। मैंने बोला इसीलिए क्यूरियस है, तो हम लोगों को एक्साइटमेंट होगी ना कि यार पैसा ज़्यादा लेना है तो बख्शी साहब से ज़्यादा गाना लिखना पड़ेगा। And और I still, उन्होंने I will किया, still record भी remember थोड़ा that उन्होंने। क्या बात excitement. है? I still remember that excitement. Yeah. moment. Which year was this? This was in 1993. 93 93. 15 रुपए किसको That मिले थे? excitement. अरे बहुत से Can you right. believe it? Bappi da first one. मतलब 7 o'clock is my invite time. मैं नीचे बैठे चेक साइन कर रहा हूँ रूम में बैठ के कि हुए नहीं। 7 o'clock sharp Bappi da is there. And then बख्शी साहब लिफ्ट नहीं ले सकते Yeah. तो he climbed up 3 stairs. यार फ्री का पैसा मिल रहा है रॉयल्टी। उनको लगता था तो ऐसे ही आ रहा, उनको कुछ पता नहीं कि भाई उनका हक है। लक्ष्मी जी तो he can't sit inside. तो इधर बाहर बैठे अपना इधर रुमाल लेकर, रुमाल टॉवल लेकर सब। एग्जैक्ट So अमाउंट तो excitement. किसी को ये याद तो मतलब नहीं होगा। बायोपिक बननी चाहिए, ऐसे सीन क्या कमाल की बनती है। बट वो बल्कि मीटिंग comedy मुझे भी है। भूलती नहीं और सबके चेहरे पे जो चेहरे, एक रौनक थी ना वो कमाल थी। तो इट्स जो हम हमेशा से बोलते हैं कि इट्स अ टीम वर्क। शुरुआत इसने की और आज सारे लोग मिलके, कल की पीढ़ी ये भी याद करेगी कि एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक सौम्या नाम की लड़की थी जिसने ये इंटरव्यू लिया और जिसने शुरुआत की। हाँ, तो तुम इतिहास का एक हिस्सा बन इतिहास का जाओगे। हिस्सा। क्या बात है? नहीं बट है भी क्योंकि यू नो इसरा का सबसे पहला इन्होंने छापा था। Yeah, in 2018, इदी में जब the first royalty distribution. Yeah, first royalty इस सामने की। बहुत कम लोग डेयर करते हैं, ये डेयरिंग बहुत कम लोगों में होती है कि ऐसे इश्यूज को उठाओ। और अब तुमको रियलाइज हो रहा होगा कि कितना मेजर और इम्पॉर्टेंट इशू है ये पब्लिक को ये बात समझने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, आज मीडिया, हर चीज़ लोगों को मीडिया में चाहिए, उसके पहले किसी चीज़ के लिए कुछ कहीं से लोग अवेयर होते ही नहीं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद सर आप बहुत विश्वास कुछ नहीं करेंगे, IPRS तो फिर भी अभी PR वगैरह करता है, बट इसामरा अभी भी इतना वो नहीं, मतलब आई हैड टू रियली फाइंड माय वे इनटू इसामरा। सो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मच डिजर्व्ड एंड आई एम सो ग्लैड। नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है तो ज़रूर हम जो भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को से कहना चाहेंगे कि वो जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, म्यूज़िक बज रहा हो, आप जाकर पूछे कि क्या आप इसके लिए आप दे रहे हैं कि नहीं। आई थिंक यू नो जितनी सिटीजन अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा इस चीज़ को भी लोग सीरियसली लेंगे। जो कि वो तमाम लोग जो इससे जुड़े रहे हैं उन सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अभी जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप विश्वास रखें, आपका फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। आई थिंक ऑल आई कैन से इज़ दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये मेरे भगवान ने मेरे पल्ले डाला है ये काम करना। यस, सो आई थैंक गॉड and I pray to God also next year, next time in my next life also give me this job only. I would also want to tell our viewers that Javed Saab was supposed to be with us and We are missing he couldn't unfortunately because of health issues. And उनकी कमी तो एकदम हम सबको खली, लेकिन
I'm so glad that all of them kept him in spirit, and we realized that his contribution is unparalleled. लेकिन अगर आप लोग अगर ये शाम बिना म्यूजिक के खत्म हो गई तो मेरा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है. So maybe just one song for the idea of celebration. हाँ, आप भी गाएंगे इसे. सब गाएंगे. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. Wow, so beautiful. Thank you so much. Clap कर रहे हैं. Thank you. Perfect song. Thank you. And thank you for sparing Thank your you, time. Soumya. It's an honor. Thank you very much, Soumya.